Yeah, so now let us discuss the next application. Okay, I hope this screen is visible to everyone. Yes, yes. सर आवाज ब्रेक होता है सर विजिबल है तुमचा आवाज थोड़ा ब्रेक होता है. Okay, okay. So just give me 1 minute. Let me switch off the fan. Okay, now tell me. Yes. आता क्लियर सर. Okay. Yeah. Okay, so we'll continue the next application of this partial derivative. Okay, so our next application is the maxima and minima. Okay, so let me just quickly revise this method once again. Maxima and minima. Okay, and this we already done, but for function of one independent variable. Okay, and in this particular topic now we have to learn this method for function of two variable. Okay, so let us start with a function of two variable. Let us take a function of two variable. Let us say z is equal to f of xy with our usual notation. Z is equal to f of xy. Okay, so what is our step one to calculate the maxima and minima? Okay, this we also called as extreme points. Okay, this is called as the extreme points. Okay, so how you actually calculate this maxima and minima? What is your step one? Step one में आपको क्या calculate करना है? So first of all you have to identify your stationary points. Okay, means stationary points means what? The points where the maxima minima is exist. So in step one we have to first find the stationary values. ठीक है, find the stationary values. What is meant by stationary values? These are the values where maxima and minima exist. These are the values where just give me 1 minute. हाँ मैम. हाँ, आपको मैं भेज दूँ क्या डिटेल्स उनके? चलेगा चलेगा, मैं आपको कर देता हूँ इमीडिएटली. ओके. हाँ. Okay. Yeah. So find the stationary values. So these are the values where the maxima and minima is exist. ठीक है, तो डेफिनेशन शायद सबको क्लियर समझ में आ चुके हैं कि स्टेशनरी वैल्यूज़ का मीनिंग क्या होता है. बिकॉज राइट नाउ वी हैव इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज एंड फ्रॉम दोज इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज वी हैव टू सिलेक्ट दोज वैल्यूज वेयर एक्चुअली दिस मैक्सिमम एंड मिनिमा इज एग्जिस्ट. ठीक है, सो दैट इज योर स्टेप वन. ओके, वी हैव टू कैलकुलेट द स्टेशनरी वैल्यूज. सो कैन एनीवन टेल मी हाउ यू कैलकुलेट द स्टेशनरी वैल्यूज फॉर हाउ यू कैलकुलेट स्टेशनरी वैल्यूज फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल? यस, कैसे कैलकुलेट करते हो आप स्टेशनरी वैल्यूज टू वेरिएबल के केस में? यस, एनीवन? partial differentiation of this z. पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट. हाँ, so let us equate dabba z by dabba z is equal to 0 and dabba z by dabba y is equal to 0 है ना. And just solve these two equation. Okay, calculate the values or calculate the roots ai comma bi which actually satisfies this equation 1 and 2 है ना. So ऐसे रूट्स आपको कैलकुलेट करने विच सेटिस्फाइज दिस टू इक्वेशन, दोज बिकम योर स्टेशनरी वैल्यूज एंड दैट इज योर स्टेप वन. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? इन सेकंड स्टेप
ठीक है. Now you have to check individually, okay, for each point, okay, where actually this maxima exist, where actually this minima exist. आपको हर एक पॉइंट के लिए चेक करना होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर इन दिस केस इफ आई कंसिडर से 10 पॉइंट्स 1 to 10, तो आपको उन 10 पॉइंट्स के लिए इंडिविजुअली चेक करना होगा कि कौन से पॉइंट पे मैक्सिमा एग्जिस्ट हो रहा है, कौन से पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है. ओके, सो लेट डिस्कस दिस नेक्स्ट स्टेप ओनली फॉर अ वन पॉइंट. सो हियर आई कंसिडर द फर्स्ट पॉइंट से a1 and b1. नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सर परत ब्रेक व्हायला लागले थोडासा आवाज. for other students, please tell me, is it actually breaking? Yes, sir. थोड़ा हो सर. Yes, sir. Okay. Actually, that one more session is going on here, and yeah, just okay, just give me 1 minute. Okay, let me inform this. Okay, just give me 1 minute. Okay, sorry, I don't have option now because that recording is going on my laptop. Maybe because of that this problem is coming. Clear है सर. Clear है. Okay, but yeah, अगर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, सो आई इन दैट केस आई नीड टू चेंज दिस लिंक. ओके, क्या हो रहा है आपके लिंक से एक और सेशन ऑलरेडी मतलब चल रहा है कॉलेज में, दैट STTP इज गोइंग ऑन फॉर PhD स्कॉलर्स, एंड तो वो मैंने साइड में ऑन किया और आई एम टेकिंग लेक्चर ऑन योर डिवीजन. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट सम इको या सम नॉइज इज क्रिएटेड. बट सो लास्ट ऑप्शन इज वॉट, आई हैव टू चेंज दिस लिंक. ओके, एक लिंक चेंज करके फिर से जाना होगा, सो इट टेक्स टाइम. ओके, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बोलो, आई विल डेफिनेटली गिव यू अ न्यू लिंक. ओके, इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Yeah, so now individually we have to check this maxima minima, okay, for this each points. Okay, so let us discuss for one point a1 and b1. Okay, so to do that, first of all you have to calculate the value of r, value of s, and value of t. Again, these are the fixed notations. Okay, you can't change these notations also. Okay, so can anyone tell me what is value of r? What is r? Yes, what is r? r क्या होता है? X square. It simply differentiate that given function with differentiate given function 2 times with respect to x, that become your r. and z क्या होता है? मिक्स डेरिवेटिव आपको लेना है, मतलब एक बार x से एक बार y. हाँ, तो ये आप कुछ कैसे भी सीक्वेंस में लिख सकते हो. y भी डेबा y डेबा x भी कर सकते हो, डेबा x डेबा y भी कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड अवर गिवन फंक्शंस आर कंटिन्यूअस, एंड डेबा x डेबा y डेबा y डेबा x इन दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है. एंड नाउ 40 इज एक्चुअली डेबा स्क्वायर z अपॉन डेबा y square. Okay, now so these are the fixed notation, and you have to calculate for this r, s, t, and after this now calculate r at point a1 comma b1, correct. Calculate this s at point a1 comma b1, calculate this t at point a1 comma b1, and then what is your next step? Now there are some remarks that I will note down in third step. Okay, so what is that remark? Okay, first tell me in which case this maxima is exist. कौन से केस में मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट होता है आपका? व्हाट इज दैट कंडीशन? व्हाट इज योर, सी इस पे सारे MCQs आने वाले. सो व्हाट इज द प्राइमल कंडीशन, ओके, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस मैक्सिमा एंड मिनिमा? व्हाट इज योर मेन कंडीशन? याद आ रही है किसी को? RT minus s square greater than 0. वेरी गुड. सो दिस वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव और ग्रेटर दैन 0. इसी केस में मैक्सिमा एग्जिस्ट होता है और मिनिमा एग्जिस्ट होता है. ओके, सो व्हेन इट इज मैक्सिमा, so for that we need to check sign of r, है ना. if r is negative then it gives you maxima, and if r is positive it gives you minima. Okay,
तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि आर टी माइनस स्क्वायर पॉजिटिव के केस में ही आपको मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है. नेक्स्ट इज व्हाट, ऑब्वियसली आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट हैपन इफ वी टेक इफ वी गेट आर टी माइनस स्क्वायर टू बी निगेटिव. ओके, तो इन दिस केस द फंक्शन नाइदर हैज मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है. And now the last case, okay, where this value is 0, rt minus s square is equal to 0. ठीक है. So this case is totally undecided case. और इस केस के ऊपर अब वैसे भी आपको क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं. ओके, सो स्टिल यू कैन से रिसर्च इज गोइंग ऑन फॉर दिस थर्ड केस. ठीक है. तो आपको सारे एग्जाम्पल केस 1 एंड केस 2 पे ही आने वाले हैं. ठीक है. सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर टू एवरीवन नाउ. कल के लेक्चर में भी मैंने रिपीट किया था, आज भी मैंने रिपीट किया है. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ सम एग्जांपल. ओके, उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. ठीक है. सो लेट अस टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, जो भी पार्ट नहीं समझ में था मुझे इमीडिएटली बोलो. ओके, वी आर नॉट हरी टू कंप्लीट अवर सिलेबस. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट. छोटी छोटी चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए. सो लेट अस डिस्कस फॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. या तो ऐसे फॉर्म में क्वेश्चन आता है थ्योरी में एक्चुअली, फाइंड मैक्सिमा and minima for the function f of xy is equal to x square plus y square. Okay, yeah. Okay, so now let us start the solution here. So in solution, ठीक है. So first of all we need to calculate the stationary values for this given function. ठीक है. So to find stationary values, okay, consider क्या कंसिडर करना पड़ता है आपको? यस, एनीवन? डाबा f by डाबा x इज इक्वल टू 0 एंड डाबा f by 0. डाबा y is equal to yes, okay, equal to 0. Okay, now let us differentiate this. So this gives you 2x is equal to 0 and this gives you 2y is equal to 0. ठीक है. नाउ टेल मी द कॉमन सॉल्यूशन और टेल मी द एक्स वाई पेयर. यस, क्या रूट सब मिल रहे हैं आपको यहाँ पे? 0. सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0. दिस आल्सो इंप्लाइज एंड दिस आल्सो इंप्लाइज y इज इक्वल टू 0. सो हियर यू विल गेट ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट दैट इज 0,0. सिंपल. यहाँ पे आपको एक ही स्टेशनरी पॉइंट मिल रहा है. इसका मतलब क्या हो रहा है? मतलब अगर फंक्शन को मैक्सिमा एग्जिस्ट हो रहा है, अगर फंक्शन को मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है ना, दैट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर दिस वन पॉइंट. इसी पॉइंट पर वो एग्जिस्ट होगा. ठीक है. नाउ लेट अस चेक, ओके, वेदर दिस पॉइंट गिव्स यू मैक्सिमा और मिनिमा. ओके, सो फॉर दैट वी नीड टू कैलकुलेट आर. सो जस्ट लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ आर विच इज आर स्क्वायर जेड अपॉन, सॉरी, let me do it for f na. So dabba square f upon dabba x square. Okay, yeah, then then next is so let me calculate this. क्या आएगा? दो बार डिफरेंशिएट करना है f को. योर f इज दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ 2. ओके, ऑलरेडी यहाँ पे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है लेफ्ट साइड में. जस्ट डिफरेंशिएट वन मोर टाइम. ओके, नेक्स्ट यस क्या होता है? द मिक्स डेरिवेटिव डाबा स्क्वायर जेड अपॉन डाबा एक्स डाबा वाई. ठीक है. तो इसका मतलब आपने ऑलरेडी वाई से डिफरेंशिएट किया है, तो ये था आपका वो डेरिवेटिव. इसको एक और बार एक्स से डिफरेंशिएट करो. व्हाट इज दिस वैल्यू? एनीवन? 0. ओके, इट इज 0. आप ये कैसे भी कर सकते हो. इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ओनली डाबा जेड बाय डाबा वाई. तो इसका मतलब क्या था? इसको आपको एक्स से डिफरेंशिएट करना है या सिंपली इसको आपको वाई से डिफरेंशिएट करना है. कैसे भी सीक्वेंस में आप जाओ. सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो 0 एंड योर टी इज डाबा स्क्वायर जेड अपॉन डाबा वाई स्क्वायर. यस, इट इज 2. वेरी गुड. ठीक है. So here we have calculated r, yes, t. Okay, now calculate the value of r. नेक्स्ट स्टेप में क्या है? कैलकुलेट r at point 0,0. अभी इसमें x एंड y है ही नहीं तो वो सेम ही रहेगी. सिमिलरली कैलकुलेट s at 0,0. इसमें भी x एंड y है ही नहीं, सो इट इज ऑल्सो रिमेन 0. एंड t at point 0,0. इसमें भी x एंड y नहीं है, सो दैट ऑल्सो रिमेन 2. नेक्स्ट वी हैव टू चेक दिस rt माइनस s स्क्वायर डिफरेंस. So RT minus S square is equal to, so RT that become 4 minus 0. ठीक है. And this difference is strictly positive. मतलब यहाँ पे confirm maximum और minima exist हो रहा है and it is totally depend on R. तो R की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 and which is positive. So what is your answer? Hence
मिनिमा. Hence function f of xy is equal to x square plus y square has minima. ठीक है, अभी इसमें यह भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, इसमें ऐड कर सकता हूं मैं, also calculate the extreme value of the function. मीन्स व्हाट, अगर मैक्सिमम एग्जिस्ट हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करो, अगर मिनिमम एग्जिस्ट हो रहा है तो मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करो. सो इन दिस केस योर फंक्शन हैज मिनिमा एट 0,0. सो व्हाट इज दैट मिनिमम वैल्यू? यस, व्हाट इज मिनिमम वैल्यू? 0 सर. 0. ओके, जस्ट कैलकुलेट एट दिस पॉइंट, है ना. अगर उस पॉइंट हाँ 0 पे आ रहा है इसे. हाँ, अगर उस पॉइंट पे मिनिमम एग्जिस्ट हो रहा है तो उस पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करो, सो दैट गिव्स यू 0. सो इट्स मिनिमम वैल्यू इज 0. तो ये भी क्वेश्चन एमसीक्यूज में आपको आ सकता है. ठीक है, अभी इस पे आप देखो कितने सारे एमसीक्यूज क्रिएट हो सकते हैं. ठीक है, तो ये पूरा क्वेश्चन आपको आ सकता है, मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट हो रहा है, या एग्जाम में आपको डायरेक्टली पॉइंट गिवन होगा, मतलब ये स्टेप आपको डायरेक्टली रेडी में मिल जाएगी. ठीक है, आई विल टेल यू ऑल पॉसिबल एमसीक्यूज. ओके, आई विल गिव यू ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स, यू हैव टू जस्ट टेल मी वेदर एट दिस पॉइंट यू विल गेट अ मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है. तो दो पार्ट में इस क्वेश्चन को आप डिवाइड करके ले सकते हो. ओके, यहाँ तक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, आपको आगे का पार्ट सॉल्व करना है या डायरेक्टली आपको यहाँ तक कैलकुलेशन करना है. जस्ट कैलकुलेट द स्टेशनरी पॉइंट्स. ठीक है, तो इन्हीं दो पार्ट में एमसीक्यूज आपको आ सकता है 50-50%. ओके, एक तो ये पार्ट गिवन होगा, आगे का कैलकुलेशन करना है या आपको यहाँ तक ही कैलकुलेशन करना है. ऐसे ही टाइप के सारे एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो विल टेक वन मोर एग्जाम्पल एज दिस इज द ट्रिवियल एग्जाम्पल. तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं. आई थिंक इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 कुछ तो है, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. चलो, नाउ जस्ट लेट मी गिव यू दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. ओके, लेट्स डू इट फॉर दिस नाउ. ओके, तो इन सोल्यूशन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट द स्टेशनरी वैल्यूज. ठीक है, सो फॉर दैट कंसिडर dabba f by dabba x is equal to 0 and dabba f by dabba y is equal to 0. Okay, so yes, tell me this now. So it is very similar to that previous example. So this is minus 2x is equal to 0 and this is minus 2y is equal to 0. Okay, then next, yes, that implies x is equal to 0 and y is equal to 0. Okay, I will do it quickly क्योंकि ये सिमिलर ही है, तो इसमें ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करते. सो यू विल गेट ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट. सो योर पेयर एक्स वाई गिव्स यू ओनली वन स्टेशनरी पॉइंट 0,0. तो इस पॉइंट पे आपको अभी क्या चेक करना है कि मैक्सिमा एग्जिस्ट हो रहा है कि मिनिमा एग्जिस्ट हो रहा है. सो फॉर दैट कैलकुलेट यस विच इज डैबा स्क्वायर एफ बाय डैबा एक्स स्क्वायर. तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट -2 हियर. या नेक्स्ट इज एस. Your s is dabba square f upon dabba x dabba y. Yes, what is this? 0. ठीक है, ये सेम ही रहेगी. And your t is dabba square f upon dabba y square, so that gives you -2. And now again, if I calculate this r at 0,0, that gives you -2. If I calculate s at 0,0, that gives you 0. If I calculate t at 0,0, that gives you -2. And now consider rt minus s square, and this is I think 4 है ना, minus 0 which is again positive, but here your r which is equal to -2 is negative. Therefore yes, what is our claim? Maxima is there. Maxima. Therefore function f of xy is equal to 1 minus x square has maxima. ठीक है, now you actually calculate that maximum value. So that maximum 1, correct. So that maximum value is equal to f at 0,0 and that is 1. ठीक है, so one question is on minima, one question is on maxima. ठीक है, या कम टू नेक्स्ट. अभी इसमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स हमें देखने हैं जहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट्स में आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसके आगे का जो पार्ट है ना, ये ट्रिवियल है. ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स के बाद ये डेरिवेटिव कहीं पे भी डिफिकल्ट नहीं आने वाले. सिंपली पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव आते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y. सो दिस डेरिवेटिव्स आर नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. ओके, ओनली यू हैव टू वर्क ऑन दिस स्टेशनरी पॉइंट्स. ठीक है, तो अभी तक के सारे दोनों एग्जाम्पल में दैट पार्ट इज ट्रिवियल. सो नाउ लेट मी गिव सम मोर डिफिकल्ट क्वेश्चंस वेयर you will actually
and difficulty in stationary points. Yeah, so let's do it this x cube plus 3xy square. Yeah, so now question number 3, f of xy is equal to x cube plus 3xy square, correct, minus 3x square minus 3y square minus 3x square minus 3y square plus 4. Okay, yeah, ठीक है. नाउ लेट्स डू इट. आप भी साइड बाय साइड करो. इफ यू हैव रफ पेज, डू इट विद मी. ठीक है. ओके, सो इन सोल्यूशन नाउ डिफरेंशिएट f विद रिस्पेक्ट टू x एंड इक्वेट. ओके, चलो अभी मेथड पता है, बट सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दी स्टेशनरी वैल्यूज, है ना. सो फॉर दैट जस्ट कंसिडर डाबा f बाय डाबा x इक्वल टू 0 एंड डाबा f बाय डाबा y is equal to 0. Okay. Now tell me this first derivative. Yes, anyone? 3x plus 3y square minus 6x. 3x square plus 3y square minus 6x is equal to 6x. 0. Okay. Next, with respect to y. 6xy minus 6y is equal to 0. ओके. हाँ, तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है. इसके आगे मैं इसमें सिंप्लीफिकेशन करने वाला. ओके, सो लेट्स डू दैट. हियर यू कैन कैंसिल दिस 3. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0 एंड हियर यू कैन कैंसिल दिस 6. So that gives you xy. Not only this, I can take y common, है ना. I can take y common. So y common in bracket I will get x minus 1 equal to 0. हाँ, अभी इसके आगे आप बोलोगे कैसे जा रहा है. At the end, I want xy pair, okay, which satisfies equation 1 also and equation 2 also. Means this simultaneous solution, okay. Means what? Simultaneous solution. मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से अगर y 0 आता है और x 1 आता है ना, y 0 आता है और x 1 आता है, डायरेक्टली यू कैनॉट ट्रीट दिस एज योर स्टेशनरी पॉइंट बिकॉज दिस पॉइंट राइट नाउ दिस सेटिस्फाइज ओनली योर इक्वेशन 2. आपको चेक करना होगा कि इक्वेशन 1 एक्चुअली वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं. तो ये आप साइमल्टेनियस सोल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या लॉजिक क्या है, हाउ यू एक्चुअली कैलकुलेट द पॉइंट्स विच सेटिस्फाइज बोथ दिस इक्वेशन, कैसे करते हो इन जनरल, कैसे करते हो. एनीवन? इन जनरल आप कैसे करते हो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कैलकुलेट कैसे करते हो, बोलो. अगर मुझे इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, द कॉमन पॉइंट्स विच सेटिस्फाई बोथ दिस इक्वेशन या दोनों को सॉल्व करना है. हाँ, दोनों को सॉल्व करना है, बट वो कैसे करते हो इन जनरल. अप्रोच क्या होता है आपका इन जनरल? पहिल्यांदा एक व्हॅल्यू काढायची आणि दुसऱ्यात पुट करायची. हाँ, करेक्ट. तो सिंपली आपका लॉजिक क्या होता है, आप किसी एक इक्वेशन की वैल्यू किसी और इक्वेशन में पुट करते हो. जब आप ऐसे करते हो तो ऑटोमेटिकली विल गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स. ओके, तो मैं सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ करने वाला. ओके, ऐसा कोई पार्ट नहीं कि जो आपने अभी तक नहीं देखा है. सो हियर व्हाट आई विल डू एज वी हैव टू फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन. तो मैं किसी एक इक्वेशन से वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ बिकॉज दिस सेकंड इक्वेशन गिव्स मी y इक्वल टू 0 कॉमा x इज इक्वल टू 1 एंड नाउ one by one I will put y equal to 0 here and x equal to 1 here and then you will get the corresponding points. ठीक है. So yeah, so this equation right now is as it is, x square minus y square minus 2x is equal to 0. ठीक है. अभी हम क्या करने वाले हैं, now put y equal to 0 in equation 1. ठीक है. put करते equation 1 में क्या मिलेगा, x square minus 2x is equal to 0. What this implies? Huh? Equal to 3 Yeah, you can take x common. So in bracket you will get x minus 2 is equal to 0. That implies, yeah, very good. X equal to 0 and x is equal to 2. ठीक है. So this you calculated only for y equal to 0. Okay, what are the corresponding points there? Therefore, points are. This you calculated only for y equal to 0. तो आपके points क्या आने वाले? 0, 0. Yes, x तो 0 है, x 0, y 0. नेक्स्ट व्हेन x2 उसमें भी क्या आपको 0 ही लेना है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन से सॉरी इस फर्स्ट वैल्यू पुट करके विल गेट दिस 2 पॉइंट्स. नाउ सेम यूज करो फॉर दिस सेकंड पॉइंट. या सो हियर 1. हाँ, आई विल पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. ठीक है. देखते क्या मिलता है. तो हियर यू विल गेट 1 प्लस
वाई स्क्वायर minus 1. माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज वाई इज इक्वल टू वॉट? Plus or minus 1. वेरी गुड, प्लस और माइनस 1, तो प्लस माइनस हाँ प्लस एंड माइनस 1 ना, दोनों आ जाएंगे ना, करेक्ट और Yes, sir. ओके हाँ यस सर या सो नाउ द पॉइंट्स आर, अभी आप बोलो क्या लिखना है मुझे बोलो. 1,1 and 1, minus 1 comma 1, x is 1 in this case, and next me also x1 minus 1. So now you can collect all your stationary points, therefore your stationary values are, तो ये MCQ में कहीं ना कहीं पे आपको सर्च करना है कि इतने सारे स्टेशनरी पॉइंट्स हैं 0,0, 2,0, 1,1 एंड 1,-1. सो इन दिस केस यू विल हैव द 4 स्टेशनरी वैल्यूज. ठीक है, अभी किसी एक केस में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बाकी केसेस में आपको मैं PPT में शो करता हूँ. ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा हमारा. या सो राइट, सो यस एनी डाउट हियर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट? तो सभी केस सॉल्व करने पड़ते क्या? यस अगर ये थ्योरी का क्वेश्चन होता ना तो आपको इस पॉइंट पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों पॉइंट्स के लिए चेक करना होगा. अभी तक आपने एक ही पॉइंट के लिए चेक किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. ओके, सो लेट मी डू इट फॉर 1 or 2 पॉइंट्स और फिर आपको समझ में आएगा कि मतलब जितने ज़्यादा पॉइंट्स आएंगे उतना क्वेश्चन लेंदी होगा. ठीक है, तर तुम्ही वेगवेगळ्या पॉइंटला वेगवेगळ्या व्हॅल्यू आल्या तर मॅक्झिमम येऊ देना. ओके, विल शो यू कि यहाँ पे क्या मिलेगा. ओके, और फिर आप देखो कि क्या कैसे कैलकुलेशन इसमें करना है. तो नाउ लेट अस कैलकुलेट आर क्या होता है, आपको एफ को 2 बार एक्स से डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, सो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे सिंप्लीफाई किया था. दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव. ठीक है, हाँ, तो 2 बार अगर आप एक और बार एक्स से करते हो तो क्या मिलेगा, 6x minus 6. Am I correct? 6x minus 6. yes sir. Yes, sir. So this is 6x minus 6. यस क्या होता है कि जो y का डेरिवेटिव था ना, डेबा x डेबा y कर देता हूँ मैं, डेबा x डेबा y. तो जो y का था ना आपका यहाँ पे, ये था y का, है ना. इसको क्या करो, एक बार x से डिफरेंशिएट करो, क्या मिलेगा, इसको x से डिफरेंशिएट करो. ये आपके फर्स्ट डेरिवेटिव थे, 6 by हाँ, ये आपके फर्स्ट डेरिवेटिव थे. तो अभी इसको अगर मैं एक बार x से करता हूँ तो आई थिंक 6y. प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई रॉन्ग. एंड देन t इज इक्वल टू डेबा स्क्वायर f अपॉन डेबा y स्क्वायर. y को 2 बार डिफरेंशिएट करना है. सो आई थिंक हियर यू विल गेट 6x minus 6. सॉरी y ना, सेम ही मिल रहा है क्या दोनों जगह पे. सो विद रिस्पेक्ट टू y इज 6x minus 6. Is it correct? Yes, sir. Okay. And now, okay. अभी एक क्वेश्चन था कि सी मैक्सिमा एग्जिस्ट होगा दैट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर अ 1 पॉइंट, मिनिमा एग्जिस्ट होगा दैट विल एग्जिस्ट ओनली फॉर अ 1 पॉइंट. ठीक है, तो इन चारों पॉइंट्स में से किसी ना किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किसी एक पॉइंट पे मिनिमा होगा. जो भी अदर पॉइंट्स है दैट विल गिव यू नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं जहाँ पे केस आपकी अनडिसाइडेड होगी. तो उस केस में आप कुछ भी मतलब यू कैंट राइट एनीथिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, ओके, विल डू इट. सो लेट अस डू इट फॉर फर्स्ट पॉइंट r at 0,0. बोलो, आप कैलकुलेशन करके मुझे बोलो, r at 0,0. यस, -6 -6. यस at 0,0. -6 0 s at 0,0. y 0 है ना, तो दैट गिव्स यू 0 ओनली. नेक्स्ट t at 0,0. हाँ, -6. ओके, हाँ, -6 हाँ. एंड नाउ कैलकुलेट. तो ये सब कुछ चल रहा है, दिस इज फॉर अ फर्स्ट पॉइंट. मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ एंड एट 0,0. लेट मी राइट इन अनदर कलर. एट 0,0. या ओके. नाउ कैलकुलेट RT minus s square. सो दैट विल बी -6 - 6 36. ये पॉजिटिव आ रहा है. ओके, अभी R देखो क्या है, R क्या है, माइनस निगेटिव है. तो क्या मिलेगा आपको फर्स्ट पॉइंट पे, यस, यू विल गेट मैक्सिमा और मिनिमा. maximum दिस पॉइंट गिव्स यू मैक्सिमा. अंडरलाइन करके लगते हैं, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ. कम टू सेकंड पॉइंट. ठीक है, आप कैलकुलेशन करके बोलो.
सेकंड पॉइंट एट वॉट 2,0 ओके एट 2,0 चलो अभी यहाँ से दिखाई देगा या टेल मी एट आर एट 2,0 एक्स इज इक्वल टू 2 वाई 0 क्या मिलेगा हाँ Maxima. टेल मी वैल्यूज फर्स्ट 6 सर सिक्स 12 है ना सर हाँ 12 हाँ सो नेक्स्ट एस एट 2,0 इट इज 0 0 and t at 2,0 12 ठीक है सो आई थिंक सर हाँ 6 येईल ना आर 6 येईल ना 6 और 12 2 minus 6. -1 sir 6. अरे हाँ हाँ करेक्ट ना सॉरी का नहीं क्या बोल रहे हो आप सॉरी हाँ क्या बोल रहे हो आर मध्ये 6 ते x2 आहे मग 6 to the 12 आहे -6 12 minus 6 होगा. और 6 येईल आणि हे टी मध्ये पण सर क्योंकि यहाँ पे y है ही नहीं ना तो मैंने उसको y पुट करने का रोल ही नहीं है वेरी गुड ओके जस्ट चेक हाँ y है ही नहीं ना तो y की जगह पे 0 आएगा ओके नाउ इट इज़ करेक्ट है अभी y है ही नहीं तो 0 करने की ज़रूरत नहीं है ओके इज इट करेक्ट नाउ प्लीज चेक कैलकुलेशन ना Yes, sir. trust on my calculation rt minus s square so that gives you 36 which is positive okay and then r is 6 which is also positive क्या मिलेगा मिनिमम Minimum. ठीक है कुछ डाउट्स है इसमें कैलकुलेशन आप बोलो रॉन्ग आता तो आप मुझे बोलो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन दैट ठीक है ओके कम टू थर्ड क्योंकि मैं भी आपके साथ ही कर रहा हूँ कैलकुलेशन नेक्स्ट इज 1 चलो 1 ठीक है हाँ अभी कैलकुलेट कर लेते आर एट 1,1 क्या आएगा बोलो x इज 1 y इज 1 हाँ 0 ना ओके r गिव्स मी 0 yes एट 1,1 क्या मिलेगा 6 ओके लेट मी राइट दिस t एट 1,1 क्या मिलेगा 0 ओके या सो व्हाट इज rt माइनस s स्क्वायर -36 क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है इफ इट इज नेगेटिव देन व्हाट इज योर कंक्लूजन नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ओके एंड कम टू लास्ट पॉइंट एट क्या था वो 1 - 1 है ओके चलो 1 and -1 एंड नाउ कैलकुलेट r एट 1, -1 क्या आएगा r की वैल्यू क्या है 6x - 6 है 0 इसमें y का रोल है ही नहीं जहाँ पे हमने उस टाइम पे मिस्टेक की थी सो 1 - 1 यस इट इज 6y तो क्या आएगा -6 एंड t at 1, -1 या 0 सो नाउ डू इट rt माइनस s स्क्वायर क्या मिलेगा ये 0 माइनस अब ये -6 का स्क्वायर है -6 का स्क्वायर फिर से 36 ही आएगा एंड दैट इज निगेटिव ठीक है सो दिस गिव्स यू नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा ठीक है तो अगर आपको फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कहाँ से मिलेगी यहाँ से कहा था वो यहाँ से ओके 0 0 पुट करो यू विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यू 2,0 पुट करो यू विल गेट अ मिनिमम वैल्यू ठीक है इज दिस क्लियर नाउ अभी कुछ डाउट्स है बोलो हमने डिटेल में सॉल्व किया अभी कुछ डाउट्स है No sir. ओके या No sir. ठीक है सो नाउ आफ्टर दिस लेट मी शो यू द एग्जांपल्स ऑन पीपीटी डायरेक्टली ठीक है दैट सेव्स आवर टाइम ठीक है सो या ठीक है स्टेशनरी पॉइंट्स का मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सो विल टेक वन मोर एग्जांपल x³ + y³ - 3axy ओके दैट a मस्ट बी पॉजिटिव आई गेस या ओके क्वेश्चन नंबर 4 लेट मी zoom this yeah so now our function is f of xy is equal to 3x³ + y³ x³ + y³ - 3axy ठीक है ओके तो यहाँ पे ए आप अभी के लिए आप पॉजिटिव कंसिडर करो आई डोंट नो
ओके क्या कंडीशन है कि नहीं के ऊपर, लेट मी चेक. या सो इन सॉल्यूशन फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट द स्टेशनरी वैल्यूज. आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है ना स्टेशनरी वैल्यूज की करनी है. सो डेबा एफ बाय डेबा एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डेबा एफ बाय डेबा वाई इज इक्वल टू 0. ओके नाउ आई विल गिव यू 1 minute. ओके टेल मी द स्टेशनरी वैल्यूज. मैं रैंडमली किसी को भी पूछने वाला हूँ. टेल मी द स्टेशनरी वैल्यूज. डू इट. आई विल आस्क रैंडमली. अदर स्टूडेंट को आंसर नहीं देना है. डू इट. आई विल वेट ओनली फॉर 1 minute एंड आप मुझे बोलो कि क्या आपके स्टेशनरी वैल्यूज आ रहे हैं. तब तक मैं आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन करके देता हूँ. डेबा बाय डेबा एक्स क्या आएगा, 3x² माइनस 3ay इज इक्वल टू 0 एंड विद रिस्पेक्ट टू y इज 3y² माइनस 3ax इज इक्वल टू 0. ओके ये था आपका फर्स्ट डेरिवेटिव. इनका यूज़ आपको करना है लास्ट में REST के केस में, तो इसको ऐसे रखते थे. Now do the simplification. Here you will get x² equal to ay and here you will get y² equal to ax. हाँ बोलो. जिन्होंने किया है जस्ट रेज योर हैंड. देखता हूँ मैं कितने स्टूडेंट को समझ में आता है एक्चुअली लेक्चर के बीच में. आप कर सकते हो ना. यू कैन रेज योर हैंड फ्रॉम दिस. So only 2 students got the answer. जिन्होंने किया है ना जस्ट रेज योर हैंड. जस्ट लेट मी चेक कितने स्टूडेंट कर रहे हैं एक्चुअली. विल वेट ओनली 1 minute. डू इट. कॉमन सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है. कैसे कर सकते हो, यू हैव टू डिसाइड. आपको मैंने लॉजिक एक्सप्लेन किया था पहले ही कि कॉमन सॉल्यूशन जनरली कैसे कैलकुलेट होता है. तो अगर आपको वो याद है ना तो मुझे नहीं लग रहा किसी को भी कुछ डिफिकल्टी यहाँ पे आएगी. ओके एंड देन रॉन्ग आने दो. सी मैं कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि आपको करेक्ट आंसर मिलने वाला है. ठीक है, बिकॉज यू आर स्टूडेंट्स. आप मिस्टेक करोगे. इतना ही नहीं, फैकल्टी भी मिस्टेक करते हैं. ठीक है, सो एज वी आर अ ह्यूमन बीइंग मिस्टेक हमसे होगी. ओके बट यू हैव टू एटलीस्ट यू हैव टू ट्राई दैट प्रॉब्लम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप ट्राई करो तभी आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी. यस I will ask randomly. Now 348. Are you 348? Yes, sir. किया है आपने? हाँ सर. सर y² is equal to a root ay. Okay, root ay. मैंने आपको पहले बोला था try to avoid this square root part. ठीक है, that gives you 2 values ना. आप अप्रोच क्या होगा? Anyone अप्रोच क्या होगा? क्या करोगे आप यहाँ पे? आप y कैलकुलेट करोगे या क्या करोगे? सर y को अज्यूम करके कोई एक वैल्यू फिर x से आएगा. सर इसको पुट करेंगे इधर. मेरा क्या कहना है कि आप यहाँ से y कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करोगे, आप यहाँ से x कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करोगे, या इज देयर एनी अदर वे? किसी एक इक्वेशन को स्क्वायर कर दें. वेरी गुड. ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना. इसमें मैंने आपको पहले क्लियर किया था, जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो ना, बी केयरफुल. इन दैट केस यू विल हैव टू वर्क फॉर 2 वैल्यूज जो आपको नहीं समझ में आएगा. ठीक है, सो इट्स बेटर टू स्क्वायर एनी वन इक्वेशन ना. ओके, सो इफ आई स्क्वायर दिस एंड नाउ यू विल पुट दिस वैल्यू, आंसर करेक्ट आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आप क्या करो, इसमें पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2. क्या है वो वैल्यू? ax. ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज हाँ दिस इम्प्लाइज माइनस a²x इज इक्वल टू 0. तर उसने एक ही बोलते तिकडे वरती स्क्वेअर केलं. तो ये स्क्वायर a³. हाँ ठीक है, ये स्क्वायर रह गया. हाँ अभी ठीक है.
वाई स्क्वेअर इक्वल टू ए एक्स. नाही तर वाय स्क्वेअर ए आहे ना तो वरती स्क्वेअर केला आपण मग एच्या जागी स्क्वेअर असेल इकडे. हा सेकंड लाईन सेकंड लाईन. if I take a square that okay a cube. And now next step you can take x common. X common, Bracket, you will X get common. x cube minus a cube equal to 0. That implies either x is equal to 0 and x cube minus a cube equal to 0. That implies either x is equal to 0 and what is choice for this? x cube minus a cube equal to 0. तो x की वैल्यू क्या चाहिए कंपलसरी? हाँ, can we take minus a? Can we take minus a? No, that will not satisfy your equation. No, sir. So you will have only one choice, that is x equal to a. Okay, x equal to a पुट करके ही आप ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर सकते हो. तो ये कॉम्बिनेशन का यूज करके हियर यू विल गेट टू वैल्यूज फॉर x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a. किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, ठीक है. चलो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो एंड विल सी. अभी फॉर एग्जांपल कोई भी एक इक्वेशन आप किस पे भी जा सकते हो. इसमें मैं पुट करके देखता हूँ. x0 पुट करना है. जब मैं यहाँ पे x0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी? इसमें अगर मैं x0 पुट करता हूँ, y की वैल्यू क्या आएगी? 0. अगर मैं x इक्वल टू a पुट करता हूँ, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस ए. प्लस माइनस है. सो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दैट गिव्स मी 1. हाँ, तो ये इसके पीछे क्या मिलता है आपको? ए स्क्वायर इक्वल टू ए वाई दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर. वाई इक्वल टू ए ही मिल रहा है ना. ओके, हाँ, आपने शायद उससे बोला होगा. तर एक्सला ए टाकते ना. हाँ, अभी आप ये सी एट द एंड दैट मस्ट सेटिस्फाइज बोथ दिस इक्वेशन. ठीक है, अगर चलो आपका मैं ले लेता हूँ. x इज इक्वल टू नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? ए एन माइनस ए. अभी ये देखो, ये आपने कहाँ से कैलकुलेट किया था? इस इक्वेशन से कैलकुलेट किया था. मुझे पता चल गया कि आपने x इक्वल टू यहाँ पे पुट किया, y स्क्वायर इक्वल टू ए. देन ऑब्वियसली योर चॉइसेस आर प्लस एंड माइनस है. बट एट देन आपको ये भी इंश्योर करना है कि दिस ऑल पॉइंट्स मस्ट सेटिस्फाई दिस टू इक्वेशन. ये तो क्लियर है, ठीक है. तो एक बार बस वेरीफाई करते कि क्या कुछ हमने रॉन्ग किया है कि नहीं. ओके, तो वरती कंडिशन दिलते ना. हाँ, तो 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? दोनों इक्वेशन x0 y0. ओके, x0 y0 LHS RHS इक्वल आती है. ये करेक्ट पॉइंट है, इसमें मिस्टेक हो ही नहीं सकती. ठीक है, ए सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x इक्वल टू ए स्क्वायर, y इक्वल टू ए स्क्वायर, LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS. ये भी परफेक्ट है, मिस्टेक नहीं हो सकती. इसमें चेक करते हैं. ओके, क्या मिलेगा इसमें फर्स्ट इक्वेशन से? बोलो. ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस. हाँ, is it? माइनस है स्क्वायर. हाँ, तो क्या मतलब इस दिस प्रॉब्लम विल, क्योंकि ये जो पॉइंट था दैट प्रॉब्लम सेटिस्फाई ओनली इक्वेशन 2. आपने यहाँ से कैलकुलेट किया था तो वही इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा ना. आपका ये रॉन्ग नहीं था. योर अप्रोच इज टोटली करेक्ट. ओके, आपने जो भी कैलकुलेशन किया था वो करेक्ट है. बट ऐसे केसेस में आपको ये भी देखना पड़ता है कि एक्चुअली वेदर दिस ऑल गिवन पॉइंट्स एक्चुअली सेटिस्फाइज दिस टू इक्वेशन और नॉट. तो वहाँ से आपको ये समझ में आ रहा है कि अरे ये तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, सो लेट अस डिलीट दिस पॉइंट. नाउ यू विल हैव ओनली 2 पॉइंट, 0,0 एंड a, इज दिस क्लियर? एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? आप मुझे बोलो. नहीं समझ में आ रहा था, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. एनी क्लियर. कंफ्यूजन? ओके, अदर स्टूडेंट्स? सर एकदा सांगा नेटवर्क गेलेलं होतं. हाँ, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए आपको कैलकुलेशन करना था. तो जब आप कैलकुलेट करते हो ना, दोनों इक्वेशन में चेक करो. तो जब मैं यहाँ पे x इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट करता हूँ, y यहाँ पे भी 0 मिलता है. अगर x इक्वल टू 0 मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे भी y 0 मिलता है. मतलब ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया. नाउ वी हैव टू पुट x इक्वल टू ए. x इक्वल टू ए आप दोनों जगह पे पुट करो, देखो क्या मिलता है. जब आप पहले इक्वेशन में पुट करते हो x इक्वल टू ए, यू विल गेट y इक्वल टू ए. जब आप सेकंड में पुट करते हो तो यू विल गेट हियर y इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए. बट मैंने क्या बोला था कि आपको दोनों इक्वेशन का ही पॉइंट कंसिडर करना है. तो दोनों इक्वेशन में यहाँ पे कॉमन क्या था? a कॉमन आ रहा है, माइनस ए कॉमन नहीं है. सो हियर आई हैव टू डिलीट दिस थर्ड पॉइंट एंड वी हैव टू कंसिडर ओनली दिस. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. ओके, एंड नाउ इसके आगे का पार्ट इज ट्रिवियल पार्ट. ठीक है, सो कुछ ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, मैं दिखाता हूँ आपको. या सो लेट मी zoom this. Yeah,
सो सेम क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज आर ए कैलकुलेट करो, यस कैलकुलेट करो, टी कैलकुलेट करो. ठीक है. हाँ, सो लेट अस डू इट फॉर फर्स्ट पॉइंट 0,0. आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? -9a². अभी ये स्क्वायर पॉजिटिव आने वाला है. ठीक है. ए कुछ भी आप कंसिडर करो बट ए स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. सो एट देन दिस वैल्यू इज निगेटिव. समझ में आ रही है सारी चीज़ें? क्योंकि अगर यहाँ पे प्लस ए आ जाता है तो क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन है आपको, आर टी माइनस स्क्वायर की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 9a आ जाती है एंड आई डोंट हैव एनी कंडीशन ऑन ए बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में. तो मुझे क्या करना होगा? इसके आगे क्या लिखना होगा? 9a. इसके आगे क्या लिखना होगा? इसके आगे मुझे क्या करना होगा? व्हेन इट इज पॉजिटिव, व्हेन इट इज पॉजिटिव. When A is less than 0. हाँ, तो इसके आगे केसेस क्या आएंगे? इफ माई ए इज पॉजिटिव, आर टी माइनस स्क्वायर इज पॉजिटिव, एंड इफ माई ए इज निगेटिव, आर टी माइनस स्क्वायर इज निगेटिव. ऐसे भी आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं. अभी क्वेश्चन में मैंने आपको पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट नो कि इज देयर एनी कंडीशन ऑन ए और नॉट. ओके, तो मैंने इनिशियली मैंने लिया था कि लेट अस टेक ए इज पॉजिटिव, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में देयर इज नो कंडीशन ऑन ए. इस क्वेश्चन में ए के ऊपर कंडीशन है ही नहीं. ए इज अ रियल नंबर, वो पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि ये एट देन ये स्क्वायर में जनरेट हो रहा है ना. ठीक है. तो वो केसेस करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको यहाँ पे. बट अगर यहाँ पे jst ए आ जाता देन नॉट टू मेक अ केसेस. अगर क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि टेक ए पॉजिटिव तो आपको केसेस करने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में नहीं दिया देन नॉट टू राइट फॉर ए पॉजिटिव ऑल्सो एंड टू राइट फॉर ए निगेटिव ऑल्सो. ओके. हाँ, तो हियर दिस वैल्यू इज निगेटिव फॉर ऑल ए एंड योर आर इज निगेटिव, देयर यू विल गेट सॉरी निगेटिव मतलब नाइदर मैक्सिमम और मिनिमा इस पॉइंट के लिए. चलो नेक्स्ट. हाँ, ये मिस हुआ था क्या अपना पॉइंट? ये पॉइंट ही नहीं था. मुझे पता नहीं, यहाँ पे रॉन्ग भी हो सकता है. नहीं, या क्या ये कोई और क्वेश्चन हो सकता है. चलो वेट कौन सा है मुझे देखने दो. मैंने बीच में स्टार्ट किया है. बट जो हमने किया वो करेक्ट है. सो आई डोंट नो अबाउट दिस. ठीक है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ. कम टू दिस अगेन. या सो विल हैव ओनली दिस 2 पॉइंट 0, 0 एंड a, ओके. लेट अस डू इट दी. ओके, ये करके स्टॉप करते. आर का कैलकुलेशन करते. आर का कैलकुलेशन क्या है? डैबा स्क्वायर एफ डैबा एक्स स्क्वायर. ओके, एफ को 2 बार एक्स से डिफरेंशिएट करना है. मैं आपको दिखाता हूँ. ये था पहला डेरिवेटिव. टेल मी वन मोर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. क्या आने वाला है? 6x. Okay, just let me write it. 6x. Yes, डैबा स्क्वायर एफ अपॉन डैबा एक्स डैबा वाई. ओके, तो ये जो था ना लेफ्ट साइड में, इसको ये y का था, इसको x से डिफरेंशिएट करना है. क्या मिलेगा? -3a. ओके, एंड t. अभी जो पीपीटी में भी जो पॉइंट्स है ना, आप ये चेक करो कि अगर वो दोनों पॉइंट्स, इफ दोज पॉइंट्स सेटिस्फाइज योर इक्वेशन 1 and 2, देन ओनली हाउ टू कंसिडर दोज पॉइंट्स. अदरवाइज हाउ टू डिलीट. अगर कुछ मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहे, अगर फिर भी उन्होंने कंसिडर किया सो विच इज टोटली रॉन्ग. ठीक है, तो वी नीड टू चेक दैट. एंड ये टी का क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई? अगेन 6y. ठीक है. ओके, एंड नाउ कैलकुलेट r at 0,0. दैट गिव्स मी 0. yes at 0,0. दैट गिव्स मी -3a. t at 0,0. दैट गिव्स मी 0 एंड योर rt माइनस स्क्वायर. ठीक है, विच इज इक्वल टू -9a² विच इज टोटली नेगेटिव एंड देयरफॉर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. ठीक है, एंड नाउ डू इट फॉर द लास्ट केस वेयर योर पॉइंट इज a, बोलो r at a. दिस इज फॉर फर्स्ट पॉइंट 27a². हाँ, ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ क्विकली. a, ये क्या आ जाएगा? सेम ही रहेगा. एंड t at a, इज 6a, है ना. तो आपने कैलकुलेट भी किया था. सो आर टी माइनस स्क्वायर विच इज़ 36a² माइनस. ओके, सो 36 माइनस वॉट? दिस इज 9a². ओके, सो दिस 36 माइनस 9 गिव्स यू 27. सो 27a² विच इज़ टोटली पॉजिटिव, है ना, बिकॉज a इज ऑलवेज पॉजिटिव. एंड
ए की वैल्यू सॉरी हाँ इसके आगे अभी हाँ इसके आगे इंटरेस्टिंग है, चलो अच्छा प्रॉब्लम आ गया। एंड नाउ यू टेल मी r इज इक्वल टू 6a, व्हाट यू हैव टू राइट नेक्स्ट? This is minimum value. कैन वी अभी आप इमेजिन करो कि दिस a इज बिलोंग्स टू r, a बिलोंग्स टू r, इमेजिन करो, मतलब ये कंडीशन है, ऊपर की कंडीशन में हटा देता हूँ तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ वी डोंट हैव एनी कंडीशन ऑन a, या नाउ टेल मी व्हाट वी हैव टू राइट नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज योर कंक्लूजन? पॉजिटिव देन मैक्सिमा, if A is negative then A is positive, हाँ, if a is then positive, function is minimum. yes, that implies your r is positive, then your function Function has is minimum. Minimum. minima, ठीक है, ये इस इक्वेशन के बारे में आपको बोल रहा था मैं, ठीक है। एंड सेकंड, इफ a is negative, that implies your Negative. r is negative, then your function has maxima, Maxima. ठीक है। अगर आपको फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप वो पुट करके कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे जो कंडीशंस आपको मिल रहे हैं ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड ऑन आर, इट डिपेंड ऑन आर, ठीक है। सो आई थिंक ओके, सो ये आप क्वेश्चन चेक करो, अगर कुछ मिस्टेक है तो मुझे बोलो, आई विल नॉट गो इन डिटेल अबाउट दिस। देयर आर सम एमसीक्यूज आफ्टर दिस ऑल क्वेश्चंस, ओके, दिस इज फॉर यू, try to solve these MCQs, and in today's tutorial we'll discuss some MCQs on this topic also, ठीक है। जो 64 क्वेश्चन की जो बैंक थी शायद आपने आगे के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। इज देयर एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन बैंक? कुछ डाउट्स है? यस, साइड बाय साइड पुट योर रोल नंबर इन चैट बॉक्स। एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन बैंक? ऐसा कोई क्वेश्चन है Sir. हाँ